यस, गुड इवनिंग ऑल। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सेट कवर किया था। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे डिक्शनरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर इनसाइड ए पाइथन। ओके, सो टुडे वी आर कवरिंग डिक्शनरी। सो कुछ बेसिक थ्योरी है डिक्शनरी के रिलेटेड, पहले वो बताती हूँ व्हाट इज डिक्शनरी। सो डिक्शनरी मीन्स व्हाट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। जैसे अब तक हम लोगों ने जो भी देखा उसके अंदर देयर इज वैल्यूज ओनली एंड बाय डिफॉल्ट देयर इज इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। Okay, so but dictionary is what? So it is a collection of key value pair. It is a collection of key and value pair. Okay, so there are two concepts. First is key and second is value. So key means you can take any name. So each item has a key and a value. Okay, whatever data you are storing inside a dictionary. Okay, so each item has a key. So key means what? Name of that item and a value. So value means what? It is information related to that document or that name. Okay, so अगर मैं यहाँ पे बताने के लिए जाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगी रोल नंबर इक्वल्स टू 1। सो 1 इज इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल्स टू, सो नेम लिख दिया मैंने सपोज सुरेखा, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन। Okay, so we are storing information and we are not using equal to, so there is a colon. Okay, so this is related to dictionary. Then there are certain characteristics of dictionary. So this is about the definition. Then what are the characteristics of dictionary? Okay, so first there are different characteristics of dictionary. So inside of it, first, dictionary is mutable. So mutable means what? We can change it. Second thing, it is unordered. Okay, third is what? Key must be unique. Key must be unique. So unique ही होना चाहिए, duplicate नहीं होना चाहिए key, because it is uniquely identified by the key only. It is there is no indexing. Okay, second, values can be anything, so you can take duplicate values also. So values can be anything, you can take any value. Okay, last one is indexed by keys. So we are indexing using by keys, not by the position, not by the position. So these are the important characteristics of dictionary. Okay, so इसको ही one by one अभी हम लोग यहाँ पे explain करेंगे, how it works, what is mutable, what is unordered, what is the concept of key, what is value. Okay, so first अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे how to create a dictionary. डिक्शनरी को create कैसे किया जाता है. So first, suppose I want to create a empty dictionary, then use it this one, है ना. So हम लोगों ने सेट के अंदर भी लिया था, बट सेट एम्प्टी क्रिएट होता ही नहीं, उसके आगे तुम लोग को सेट इंडिविजुअल कीवर्ड लिखना पड़ता है. सपोज मैंने यहाँ पे डी को प्रिंट किया, देन इट गिव्स मी एम्प्टी डिक्शनरी, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेटा टाइप ऑफ दैट डी ना, so just check it is a dictionary. Okay, next, second concept is this is about the empty dictionary. So we can create empty dictionary. ऐसे तुम लोग empty dictionary create कर सकते हो. Okay, second concept is मैंने उसका data type भी बता दिया. Now I just want to create a homogeneous dictionary. So homogeneous dictionary means what? Data type of keys as well as value is same. Okay, okay, so for example मैं यहाँ पे एक dictionary create कर रही हूँ, that is for student. So I am using student equal to, so just using curly bracket. Okay, and inside it suppose I want to find out the name. Okay, so name मैंने यहाँ पे लिख दिया, it's सुरेखा. I just assign a CT. Suppose मैंने यहाँ पे दिया CT. CT equals to मैंने यहाँ पे लगा दिया it's a Pune. Next, I just want to assign a marks, and suppose marks equal to, and I'm assigning it as a 90. Okay, okay, 90. एंड जैसे मैं यहाँ पे रन कर रही हूँ स्टूडेंट को, सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी दैट डिक्शनरी, है ना. ओके, क्लियर है. तो ऐसे तुम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो. सो ऑल लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी होगी दीज आर द कीज, एंड राइट हैंड साइड पे जो भी होगा दीज आर द वैल्यूज. सो मैंने ये की वैल्यू प्रोवाइड फॉर्मेट किया, जस्ट लाइक ए जेसन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट एनोटेशन. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिक्शनरी. डेटा जो भी स्टोर होगा इट इज इन द फॉर्मेट ऑफ की एंड वैल्यू फॉर्मेट. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे मिक्स कीज क्रिएट करनी है ना. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट ए मिक्सड कीज. मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स अ मिक्सड कीज. सो कैसे लेंगे? सपोज मैंने एक डिक्शनरी लिया यहाँ पे D1. सो D1 इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे की में प्रोवाइड करना चाहती हूँ टपल. सी कीज है ना, इम्यूटेबल डेटा होना चाहिए, म्यूटेबल नॉट अलाउड. ओके, एंड मैंने यहाँ पे दिया 1. एंड सपोज मैंने यहाँ पे मेरा नेम प्रोवाइड किया, नेम इक्वल्स टू इट्स सुरेखा.
दैट्स इट। एंड सपोज आई वांट टू प्रिंट दैट D1, सो सी व्हाट हैपन, है ना। सो टोटल ये जो 1 2 3 8 से टप्पल, ये टप्पल को हम लोग एज अ की असाइन किया है, नेम भी यहाँ पे की है। सो तुम लोग ऐसे मिक्स्ड फॉर्मेट में ले सकते हो, बट रिक्वायरमेंट इज व्हाट, ये इम्यूटेबल होना चाहिए, म्यूटेबल की इज नॉट अलाउड। ओके, क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट होता है वी आर क्रिएटिंग 2D डिक्शनरी। सो 2D का ही मीनिंग होता है इट्स अ नेस्टेड। ओके, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट करने वाली हूँ। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आई जस्ट वांट टू असाइन इन नेम। नेम दिया मैंने यहाँ पे सपोज मेरा, ओके। देन आई वांट टू जस्ट असाइन ए लोकेशन, एंड इनसाइड ए लोकेशन आई एम पासिंग इट एज अ सपोज आई एम फ्रॉम पुणे। एंड देन suppose I am assigning which courses I purchase, so मैंने यहाँ पे लिया courses equal to, and courses के अंदर फिर से मेरा डिक्शनरी आएगा, so I am again providing a dictionary, and इसके अंदर मैंने लिया suppose I am purchasing Java, whose cost is suppose 35,000, and again I am purchasing suppose C, which is 5,500. I am again purchasing C++, which is again 5,500. Okay, and now I want to print that S. Okay, so see this is the nested dictionary, and you can say it as a 2D also। dictionary के अंदर मैंने dictionary provide किया है। okay, clear है? सेकेंड तरीका होता है कि तुम लोग डिक्ट कीवर्ड, यानी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बोलते हैं हम लोग उसको, उसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हो। तो कैसे करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया D2, just use a dict keyword, and inside a dictionary I'm passing a list। okay, and inside that list suppose I'm passing first it's a name, and suppose I'm passing it as a Surekha। okay, so this is my first value। okay, what I'm first passing key as a name, and we are passing list, so this is my first item। okay, now suppose second is age, I'm providing it as a 33 comma, this is my second tuple value। okay, so just put it inside a tuple format only। okay, next suppose I'm providing it as a, I just want to provide a salary of that candidate, so I'm using salary, and comma it's suppose 50,000 something। okay, so see dictionary, inside a dictionary I'm passing one value, name, key value pair, again I'm assigning a comma, it's a age which is 33, then comma I'm assigning second value। okay, done। And next, why it gives me error? Okay, so I'm using a dict now। okay, see I think there is a little error है कुछ, तो I'm using dict। so first inside a dictionary I'm passing a function, and into that I'm passing a list। so this is my first item comma, this is my second item comma, this is my third item। okay, so let it be, we are just running it, so it's a D2। okay, what gives me error? okay, see मैंने यहाँ पे ना एज अ डिक्शनरी पास किया, so it's a comma only, and now run। okay, so ऐसे तुम लोग पास कर सकते हो। so inside a list this is my first item, this is my second item, this is my third item। तो नेम को लेगा नेम, यहाँ पे मैंने दिया सुरेखा, एज इट्स 33 एंड सैलरी इट्स 50,000। सो ऐसे डिक्ट कीवर्ड से भी तुम लोग पास कर सकते हो। सो डिक्ट मीन्स व्हाट, इट्स अ कंस्ट्रक्टर फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सेकेंड थिंग, सपोज अभी हम लोगों ने ऊपर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, लिस्ट इज म्यूटेबल, है ना। म्यूटेबल मीन्स व्हाट, यू कैन चेंज इट। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ऊपर स्टूडेंट का डिक्शनरी था, है ना, एंड मुझे इसके अंदर चेंजेस करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट के अंदर जाओ, स्टूडेंट का सपोज आई वांट टू फेच ए नेम, है ना। डिक्शनरीज में इंडेक्सिंग नहीं होगा, जो भी इंडेक्सिंग है वो की के थ्रू तुम लोग फेच करोगे, एंड जस्ट आई विल जस्ट वांट टू चेंज इट। सो मैंने यहाँ पे लिखा, जो भी मैंने सुरेखा नाम दिया था तो उसको रिप्लेस करो, एंड मैं बोलूँगी इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट राइट डाउन ए रेखा, है ना, एंड आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट स्टूडेंट। ओके, सो इट इज म्यूटेबल्स, यानी यू कैन चेंज इट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट फीचर। सेकेंड फीचर इज व्हाट, इट इज अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड है, तुम लोग जिस फॉर्मेट में दोगे वैसे नहीं है, यहाँ पे 0 1 2 चलता ही नहीं है ना, इट्स नॉट अलाउड। ओके, सेकेंड थिंग, म्यूटेबल आइटम्स एज कीज नॉट अलाउड, है ना। जैसे मैं बोला था ऊपर कि तुम लोग एज अ टप्पल पास करो बट लिस्ट नॉट अलाउड, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ वैल्यूज है क्या, या उसके बाद देखा था डुप्लीकेट कीज नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी लेती हूँ, एंड उसके अंदर आई एम पासिंग नेम। ओके, आई एम पासिंग नेम इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे दिया इट्स सुरेखा, एंड आई एम अगेन पासिंग सेकेंड की एज अ नेम, एंड इसके अंदर मैंने दिया सपोज यहाँ पे जे, एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट दैट D1। सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी ओनली वन, यानी उसने मुझे एरर नहीं दिया,
बट जो फर्स्ट वाला वैल्यू था उसको उसने इग्नोर किया एंड इंस्टेड ऑफ दैट इट गिव्स मी नेम इक्वल्स टू जे। ओके, यानी डुप्लीकेट की इज नॉट अलाउड, एरर नहीं देगा, बट वो क्या करेगा, जो उसको करंटली मिला है उसको देगा, यानी प्रीवियस को स्वैप कर रहा है वो। ओके, सो दिस इज अबाउट वी कैन नॉट टेक ए डुप्लीकेट कीज। ओके, सेकेंड की इज व्हाट, म्यूटेबल आइटम्स एज अ की नॉट अलाउड, जैसे मैंने पहले बोला तो उसको सेटिस्फाई करने वाला एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नेम करके तो एक मेरा पास किया है, यहाँ पे सपोज इट्स सुरेखा, एंड यहाँ पे ना मैं म्यूटेबल देती हूँ कुछ, तो सो म्यूटेबल होता है अपना लिस्ट, सो 1 2 3 दिया, एंड यहाँ पे मैंने उसके अंदर कुछ तो वैल्यू स्टोर किया 100, एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट दैट D1, सो सी इट गिव्स मी एरर। व्हाट, अनहैशेबल का एरर कभी भी आता है ना, तो उसका मीनिंग होता है इट इज रिलेटेड टू म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी। सो योर लिस्ट इज म्यूटेबल, सो म्यूटेबल इज नॉट अलाउड, सो टप्पल में चल जाएगा बट लिस्ट के केस में नॉट अलाउड। ओके, सेम कॉन्सेप्ट है। देन हाउ टू एक्सेस, सपोज मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया था, उसको मैंने रन किया। सो जैसे ही मैंने तुम लोगों को पहले बोला, सपोज मुझे नेम को एक्सेस करना है ना, देन आई एम यूजिंग नेम। ओके, आई एम यूजिंग नेम, सो नेम यहाँ पे जाएगा एज अ की, एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी, सो इट गिव्स मी, what happened, student, okay, it's key, okay, so it gives me रेखा। ऐसे ही मुझे फॉर एग्जांपल मार्क्स चाहिए उसके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट, स्टूडेंट के अंदर जस्ट राइट डाउन मार्क्स, जैसे तुम लोग इसको प्रिंट करोगे सो इट गिव्स मी मार्क्स। ओके, सो ऐसे डेटा को एक्सेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल तुम लोगों ने बोला कि स्टूडेंट ऑफ 0 लिया तो क्या होगा, तो सी इसे लिया, देन इट गिव्स मी 0 एरर। क्यों, की एरर, बिकॉज वो क्या बोल रहा है, 0 नाम की है ही नहीं तुम लोग के पास, सो यू आर असाइनिंग नेम, सिटी एंड मार्क्स। ओके, सो इंडेक्सिंग इज अलाउड यूजिंग कीज ओनली। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट, मैंने बोला था डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड, डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड। ओके, सो डिक्शनरी से डेटा अगर तुम लोगों को लेना है ना, देन वी आर यूजिंग स्टूडेंट डॉट गेट, सपोज आई वांट टू गेट नेम, है ना, नेम, सो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, दैट इज रेखा। ओके, सो वी कैन एक्सेस यूजिंग गेट आल्सो। ओके, एंड यहाँ पे मैंने बोला था डिक्शनरीज अनऑर्डर, सो अनऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, देयर इज नो इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग ही नहीं है तो तुम लोग किसी भी ऑर्डर में उसको फेच कर सकते हो यूजिंग कीज ओनली। ओके, so if you want to fetch data, so directly provide that keys, or you can use a get method also. Okay, क्लियर है यहाँ तक। ओके, सेकंड थिंग, अगर तुम लोगों ने यहाँ पे देखा तो ये मेरा एक डिक्शनरी था जिसके अंदर मैंने नेम, सिटी एंड मार्क्स लिया था, बट मुझे बाद में लगा कि नहीं, मुझे ना स्टूडेंट के अंदर है ना उसका कॉलेज का नाम भी ऐड करना है। सो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉलेज इक्वल्स टू, एंड सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया इट्स अ DY पाटिल, है ना, DY पाटिल, एंड नाउ रन, एंड जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट को लिखूंगी ना, सो सी व्हाट हैपन, उसने कॉलेज नाम का एक एक्स्ट्रा का की विथ वैल्यू वहाँ पे ऐड कर दिया। सो ऐसे तुम लोग उसके अंदर वैल्यू की वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग, आई थिंक मैंने एक यहाँ पे क्रिएट किया था कोर्स वाला, दैट इज माई एस, एंड सपोज आई एम प्रिंटिंग दैट एस। ओके, अभी इस केस में क्या हो रहा है ना, मैंने बोला ना एस ऑफ कोर्सेज, COURSES, सो ये क्या करेगा, मुझे सारे कोर्सेज देगा, बट उसमें से आई जस्ट वॉन्ट ए C++ वाला डेटा, है ना, मुझे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू फेच C++ वाला डेटा। तो उस केस में क्या करूंगी, मैं बुलाऊंगी कोर्सेज को, एंड कोर्सेज के अंदर में से आई रिक्वायर्ड है C++ वाला डेटा, एंड जैसे ही तुम लोग इसको रन करोगे, सो सी वो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बोला होता कि मुझे कोर्सेज चाहिए, एंड inside that courses I required a information of Java, जैसे मैं इसको रन करूंगी तो ये जावा की इंफॉर्मेशन मुझे निकाल के देगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम लोग को लगता है नहीं कोर्सेज के अंदर कोई और कोर्सेज ऐड करने थे, तो मैंने बोला कोर्सेज, उसके अंदर एक अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है डेटा साइंस, वो ऐड कर दो, एंड उसका फीस मैंने कुछ तो यहाँ पे लगा दिया होता 60,000 समथिंग, है ना, एंड नाउ रन करो, एंड जैसे मैं इसको रन कर रही हूँ ना, तो सी वो कोर्सेज के अंदर एक एक्स्ट्रा का कोर्स चला गया, दैट इज डेटा साइंस। ओके, सो ऐसे तुम लोग नेस्टेड डिक्शनरी के अंदर भी डेटा ऐड कर सकते हो। डन, नेक्स्ट इज सपोज आई वांट टू रिमूव दैट की वैल्यू फॉर्मेट। ओके, सो की वैल्यू फॉर्मेट को अगर तुम लोगों को रिमूव करना है, so there are different functions, so how to remove key value format। Okay, so there is a first function called as a pop, second function is a pop item, okay, third function it's a del, so you can delete that particular dictionary, last one is clear, using clear you just delete that dictionary। okay, so suppose अभी मेरे पास एक s नाम का डिक्शनरी में ऊपर का यूज कर, ओके, एंड अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता ना s डॉट पॉप फंक्शन, ओके, एंड सपोज आई वांट टू डिलीट समथिंग, सो मुझे क्या करना है, जो भी लोकेशन की है ना उसको डिलीट करना है। ओके,
तो ये क्या बोल रहा है, पूना डिलीट हो गया। सपोज आई एम प्रिंटिंग एस ना, सो सी व्हाट हैपन, उसने क्या किया, वो जो लोकेशन था उसको डिलीट मार दिया। ओके, सो डिलीट क्या करता है, इट डिलीट दैट पर्टिकुलर की वैल्यू फॉर्मेट। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता है एस डॉट इट्स अ पॉप आइटम, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टूडेंट का है, उसके ऊपर लेती हूँ मैं। ओके स्टूडेंट, एंड आई एम यूजिंग स्टूडेंट डॉट इट्स अ पॉप आइटम। जैसे मैं इसको रन करूंगी ना, सो सी इसने क्या किया, मुझे कॉलेज डीवाई पाटिल डिलीट हुआ है, यानी जो डिलीट हुआ है वो दिखा रहा है। सपोज मैंने स्टूडेंट को रन किया, सो पॉप आइटम क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इट डिलीट्स द लास्ट वाला। एंड पॉप के अंदर तुम बता सकते हो कि किसको डिलीट कर रहे हो तुम लोग। ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट इज डेल। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी डेल फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल डेल। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट में से अभी मुझे क्या डिलीट करना है, सो आई जस्ट वांट टू डिलीट मार्क्स। एंड अगर मैंने यहाँ पे रन किया एंड जस्ट चेक दैट स्टूडेंट, सो सी व्हाट हैपन, स्टूडेंट में से वो जो मार्क्स वाला डेटा था वो डिलीट किया। बट डिलीट क्या कर रहा है, जो डिलीट हुआ है वो नहीं दिखा रहा है। वैसे पॉप ने क्या किया, जो डिलीट हुआ था उसको दिखा रहा था, तो डिलीट के केस में जो डिलीट हुआ है वो दिखाई नहीं देगा। सो इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स ऑन योर रिजल्ट। फिर से रन करके देखो डिक्शनरी को, वो पता चल जाएगा। ओके, डन। सपोज मैंने वही अभी स्टूडेंट का भी हम लोगों ने लिया था यहाँ पे, तो स्टूडेंट में से आई थिंक एस लिया था मैंने, है ना, यस को लिया मैंने। तो एस में से जाना है मुझे, तो एस में से आई जस्ट वांट टू डिलीट कोर्सेस। कोर्सेस में से किसको डिलीट करना है, सो आई जस्ट वांट टू डिलीट सी। ओके, जस्ट डिलीट सी। एंड अगर मैंने इसको रन किया एंड फिर से जैसे मैं एस को देख रही हूँ ना, सो सी उसमें से क्या बोल रहा है वो, ओके आई एम नॉट डिलीटिंग। सो जस्ट यूज ए डेल कीवर्ड आके ना, डिलीट के अंदर लिख दो किसको डिलीट मारना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी जस्ट डेल एंड जस्ट रन इट, एंड नाउ प्रिंट योर एस। सो सी, जो सी का डेटा था उसके अंदर से वो डिलीट हो गया। ओके, सो ऐसे तुम लोग एडिटिंग कर सकते हो, डिलीटिंग कर सकते हो, एक्स्ट्रा का डेटा ऐड भी कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिक्शनरी के फंक्शंस ऑपरेशंस कौन से होते हैं। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे डिक्शनरी ऑपरेशंस, और यू कैन से इट एज ऑपरेशंस ऑन डिक्शनरी। ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन होता है यहाँ पे, इट्स अ मेंबरशिप। सबसे कॉमन है, सबकी जगह सब में यूज किया जाता है मेंबरशिप, दैट इज इन एंड नॉट इन। एंड इटरेशन कर सकते हो, दैट इज यूजिंग ए फॉर्मेट। ओके, सो ये दो ऑपरेशंस के ऊपर अभी हम लोग फोकस करें। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी एक डिक्शनरी था ऊपर एस नाम से, सो आई जस्ट वांट टू चेक। तो मैंने यहाँ पे लिया कि कोर्सेज कीज है, कोर्सेज इन एस है क्या, तो सी इट गिव्स मी ट्रू। क्यों, ये काम किसके ऊपर करेगा, इट वर्क्स ऑन कीज ओनली, इट वर्क्स ऑन कीज ओनली। बट मैंने यहाँ पे लिखा होता सपोज सी प्लस प्लस इन एस, है ना, बट स्टिल इट गिव्स मी फॉल्स। व्हाई, बिकॉज इट वर्क्स ऑन ए कीज ओनली। ओके, इट वर्क्स ऑन कीज ओनली, ये वैल्यूज के ऊपर काम नहीं करेगा, इट वर्क्स ऑन ए कीज ओनली। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट इट्स इटरेशन पार्ट। सो इटरेशन का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ऊपर स्टूडेंट का डेटा था, है ना, एंड मुझे क्या करना है, ये आया इट्स इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी, सो मुझे इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना है। सो फॉर आई इन, मैं बोलूंगी स्टूडेंट में से जा एक एक डेटा खींच के ला, एंड जस्ट प्रिंट करो उस पर्टिकुलर आई को, नाउ रन इट। सो सी, आई को मैं पीछे अलग क्यों छोड़ देती हूँ, जस्ट पुट इट इनसाइड अ ब्रैकेट, नाउ रन। तो सी इसने मुझे क्या किया, इट गिव्स मी इन ए प्रॉपर कॉलम फॉर्मेट। ओके, तो उसने मुझे जस्ट क्या किया, की निकाल के दिया। बट नहीं, तुम लोग की रिक्वायरमेंट की एंड वैल्यू दो होनी चाहिए थे। जस्ट आई एम कॉपिंग इट एंड दिस पेस्ट इट हियर। सो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगी, आई जस्ट वांट आई, यानी वैल्यूज एंड कॉमा। ओके, सो इन दिस सिनेरियो व्हाट आई एम यूजिंग, इट गिव्स मी नेम एंड सिटी एंड कीज ओनली। सो आई वांट दैट डेटा ओनली, डेटा ऑल्सो। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी क्या नाम था उसका, स्टूडेंट ऑफ दैट आई। एंड नाउ जैसे तुम लोग इसको रन करोगे, सो इट गिव्स मी नेम, है ना, तो तुम लोग उसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हो। नाउ रन इट। ओके, सो नेम इज रेखा एंड सिटी इज पुणे। सो ऐसे तुम लोग उसको इटरेट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट, फिर डिक्शनरी के अंदर फंक्शंस कौन से होते हैं, सो विच आर द फंक्शंस, सो जस्ट राइट डाउन फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी। फंक्शंस ऑफ डिक्शनरी कौन से फंक्शंस होते हैं, तो पहला फंक्शन होता है लेंथ। नॉर्मल स्ट्रिंग के अंदर कितना डेटा है वो ढूंढ सकते हो, मिनिमम कौन सा है, मैक्स कौन सा है, उसमें से सॉर्टेड निकालना है। तो ये सारे फंक्शंस अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो कंसिडर करो मेरे पास एक डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ मैं। सपोज मैं यहाँ पे ले रही हूँ D1 इक्वल्स टू, सो आई एम यूजिंग यहाँ पे मैंने दिया फर्स्ट इट्स नेम इक्वल टू, सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया सुरेखा, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू असाइन ए एज।
सपोज मैंने यहाँ पे दिया 33 एंड आई एम जस्ट पुटिंग ए लोकेशन. सो लोकेशन मैंने यहाँ पे दिया सपोज इट्स चिंचवड. डन. सो दिस इज अबाउट द D1. ये एक मेरे पास डिक्शनरी है. ओके तो अभी मुझे क्या करना है ना, इसके ऊपर सारे फंक्शंस लगाने. मैंने लगा दिया लेन. सी इट्स लेन ऑफ दैट. सो व्हाट हैपेंड, इट्स लेन ऑफ दैट D1. सो कितना डेटा है उसके अंदर. सो देयर आर टोटल 3 एंट्रीज. ओके मैंने बोला इसमें से मिन ऑफ D1. सो सी ये क्या करेगा, इट गिव्स मी मिनिमम. सो मिनिमम क्या है, ए है ना. ए इसके हिसाब से जाएगा. इट्स ABCDEFG. सपोज मैंने मैक्स ऑफ लगा दिया D1. तो मैक्स ऑफ D1 क्या करेगा, LMN. एन बाद में आता है ना, LMN. तो एन को निकाल के दिया. क्लियर है. एंड सपोज मैंने यहाँ पे बोला होता कि जस्ट यूज इज सॉर्टेड ऑफ दैट D1. सो सॉर्टेड क्या करता है, अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. यानी एज को पहले लिया, लोकेशन को बाद में दिया एंड देन नेम को दिया. ओके सो ऐसे तुम लोग यूज कर सकते हो. बाद में तुम लोगों को लगता है कि नहीं मुझे असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग में चाहिए, देन यूज ए रिवर्स इक्वल टू ट्रू. इसलिए तो ये क्या करेगा, डेटा डिसेंडिंग में निकाल के देगा. ओके बट इट इज ऑन ए कीज ओनली. क्लियर है यहाँ तक. ओके नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये D1 लिया है, जस्ट रन इट. एंड मुझे क्या करना है, इसमें से ना सारे कीज ही चाहिए, सारी वैल्यूज ही चाहिए या सारे आइटम्स ही चाहिए. सो अगर मैंने D1 को प्रिंट किया देन इट गिव्स मी एंटायर डेटा. मैं यहाँ पे बोलूंगी D1 डॉट आई जस्ट वांट ए आइटम्स. एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी ना तो ये क्या करेगा, ओके आई एम यूजिंग इट एज अ एट्रीब्यूट. सो जस्ट यूज इट एज अ फंक्शन. सो इसने क्या किया, सी मुझे निकाल के दिया. सो दीज आर द वैल्यूज, है ना. टपल के फॉर्मेट में मुझे दिया, नेम क्या है, एज क्या है, लोकेशन क्या है. बट मुझे इसमें से सिर्फ कीज चाहिए. सो जस्ट यूज ए D1 डॉट कीज. तो कीज क्या करेगा, उसमें से सारी कीज की निकाल के देगा. ओके व्हाई आई एम यूजिंग एज एट्रीब्यूट. ओके इसने क्या किया, कीज निकाल के दिया. D1 डॉट सपोज आई एम यूजिंग वैल्यूज. तो ये क्या करेगा, जस्ट वैल्यूज निकाल के देगा. ओके ऐसे तुम लोग फेच कर सकते हो कीज वैल्यूज आइटम्स में, इट्स इन अ टपल फॉर्मेट. ओके डन. सेकेंड कंसिडर करो, मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी लिया है. सो D1 इक्वल्स टू में यहाँ पे ले रही हूँ 1 केस में 2 स्टोर कर, 3 केस में 4 स्टोर कर, 4 केस में 5 स्टोर कर. ओके सो दिस इज माई डिक्शनरी 1. ओके ऐसा डिक्शनरी किया क्या. एंड सेकेंड डिक्शनरी क्रिएट करी D2. तो उसके अंदर मैंने लिखा 6 में 7 स्टोर कर एंड 7 के अंदर 8 स्टोर कर. ओके एंड दिस इज माई D2. ओके सो मेरे पास दो डिक्शनरी है अभी. सो मैं यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ. फर्स्ट वन इज D1 एंड सेकेंड इट्स अ प्रिंट दैट इज योर D2. एंड जैसे तुम लोग इसको रन करोगे सो सी व्हाट हैपन, उसने मुझे दोनों को प्रिंट करके दिया. बट नाउ है ना, मुझे क्या करना है, इसके ऊपर कुछ फंक्शंस लगाने हैं. सपोज आई जस्ट वांट टू कॉन्केट दैट टू डिक्शनरीज. तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी D1 डॉट अपडेट इट्स D2. एंड जैसे इसको रन करूंगी मैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है. रिजल्ट नहीं आ रहा है मीन्स जो भी चेंजेस है दीज आर द परमानेंट चेंजेस. करेक्ट है ना, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था अगर रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा है इमीडिएटली इट मीन्स दीज आर द परमानेंट चेंजेस. ओके क्लियर है. एक और ऑप्शन है तुम लोग के पास. सपोज मैंने यहाँ पे लिया D11 एंड इसके अंदर मैं डिक्शनरी स्टोर कर रही हूँ. सपोज इट्स मैंने लिया ए के अंदर मैंने 1 स्टोर किया. सेकेंड लिया मैंने बी के अंदर मैंने 2 स्टोर किया. उसके बाद लिया मैंने सी के अंदर मैंने 3 स्टोर किया. एंड आई एम यूजिंग सेकेंड डिक्शनरी. एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे बोला D. सो D के अंदर मैंने 11 स्टोर किया. सेकेंड लिया मैंने E के अंदर मैंने 12 स्टोर किया. एंड मैंने यहाँ पे लिया एफ के अंदर मैंने कुछ तो 14 स्टोर किया. ओके ये नया वाला तरीका है अगर मर्ज करना है दोनों को. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इट्स अ D11 एंड देन यूज ए और ऑपरेटर एंड आई एम यूजिंग इट्स अ D12. ओके एंड जैसे तुम लोग इसको रन करोगे ना तो सी व्हाट हैपन, ये अगेन तुम लोगों को डेटा मर्ज करके देगा. बट सी दिस इज द परमानेंट चेंजेस नहीं है, इट्स अ टेम्पररी चेंजेस. ओके सो ये अभी नया अपडेट आया है. सो अगर तुम लोग को परमानेंट करना है फिर एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रखो. सपोज मैंने लिखा ANS एंड नाउ रन दैट ANS. सो ये सारा चेंजेस ANS के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा. सो ऐसे तुम लोग डिक्शनरी को कॉन्कैट कर सकते हो. ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे कॉन्कैट लगा दिया. ओके एंड मैं अगर यहाँ पे लिखती D1 और इक्वल टू इट्स D12. ओके एंड नाउ जैसे मैं इसको रन करूंगी सो सी D11 के अंदर क्या चेंजेस हो गए देखो, है ना. D11 अभी ऊपर था तुम लोगों का, है ना. जैसे ही ओके यहाँ पे सो D11 के अंदर सारे चेंजेस हो गए, है ना. D11 इक्वल्स टू क्या किया था हम लोगों ने, D12. सो जो भी डेटा है सारा वो क्या हुआ, D1 के अंदर चला गया. क्लियर.
बट नाउ माय कंसर्न इज व्हाट, मैंने दोनों को तो मर्ज किया था, यहाँ पे आंसर के अंदर स्टोर किया। ओके एंड मैंने अगर डी, ओके सिर्फ इतना ही प्रिंट किया। सो अभी मेरा D1 चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, दोनों को मर्ज किया। तो ये अभी रिसेंटली अपडेट्स आए हैं, इससे पहले नहीं थे। वी आर यूजिंग अपडेट फंक्शंस ओनली, सो वी आर यूजिंग और ऑपरेटर आल्सो। ओके, D1 D11 इक्वल्स टू D12। ओके, जस्ट D12 को चेक करके देखती हूँ इसके अंदर कुछ चेंजेस ही क्या नहीं, ये तो ऐसे की ऐसा ही है। ओके ओके, सो ऐसे अपडेट फंक्शन तुम लोग यूज कर सकते हो। एंड D1 और इक्वल टू D12 लिया, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसने क्या किया, दोनों के इसमें से भेज 1 वाला डेटा, 3 वाला डेटा एंड 4 वाला डेटा। ओके, सो अभी देखो यहाँ पे मेरे पास ये D11 है, जस्ट प्रिंट करके देखते हैं। एंड आई एम जस्ट प्रिंटिंग दैट D12 also now run। ओके, सो ये मेरे पास दो लिस्ट है, मैं यहाँ पे लिख लूँ D11 और इक्वल टू इट्स D12। ओके, जैसे इसको रन करूंगी मैं D11 को, तो सी व्हाट हैपन, D11 के अंदर वैसा ही डेटा, इट्स 1 2 3, D11 है ना, 13 एंड 14। ओके, सेम ही ऑपरेशन आ रहा है, दोनों के अंदर डेटा कॉन्केटिव हो रहा है। ओके, डन। सो नेक्स्ट इज अबाउट द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। सब टॉपिक में कॉमन है, कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या आता है, इट इज द स्मॉलेस्ट वे टू क्रिएट ए डिक्शनरी। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इट्स अ कॉम्प्रिहेंशन। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है। ओके, सो क्या करूँगी मैं, यहाँ पे देखो जस्ट आई एम यूजिंग ए डिक्शनरी वाला साइन। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई इक्वल्स टू आई रेस टू 2, यानी पावर आएगा। फॉर आई इन मैं यहाँ पे लिखूंगी रेंज, इट्स 1 to 11। ओके, फॉर आई इन रेंज आएगा। सो मैंने क्या किया, आई एक वेरिएबल लिया विच इज योर की, एंड ये तुम लोग का वैल्यू होगा। सो फॉर आई इन रेंज 1 to 11, यानी क्या करेगा, 1 1 का स्क्वायर 1, 2 2 का स्क्वायर 4, ऐसे करके तुम लोगों को एक डिक्शनरी क्रिएट करके देगा। सी 1 4 ऐसे कहाँ तक जाएगा, 10, 11 दिया है तो 10 तक चला जाएगा। ओके, सो ऐसे तुम लोग डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन थ्रू डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सेकेंड है कॉन्स्टेंस कॉन्सेप्ट है मेरे पास। सपोज मेरे पास एक डिक्शनरी है यहाँ पे, एंड इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिया है सपोज पुणे, यहाँ पे लिख दिया पुणे के अंदर सपोज 1000 कुछ तो लोग रहते हैं। मुंबई लिया मैंने, मुंबई के अंदर कुछ तो 2000 लोग रह रहे। फिर से मैंने यहाँ पे लिया दिल्ली, दिल्ली के अंदर कुछ तो 5000 लोग रह रहे। ऐसा मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट किया D1। ओके, सो आई एम जस्ट यूजिंग D1 डॉट, आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट द आइटम्स। मैंने अगर इसको रन किया, तो ये क्या करेगा, मुझे टपल के फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर का एक फॉर्मेट डिजाइन करके देगा। ओके, सो अभी है ना, मुझे इससे है ना एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो सी मैं कैसे क्रिएट कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी आई एंड जे इंटू 0.62। यानी कंसिडर करो कि आई जो है वो मेरा की है एंड जे इज माई वैल्यू। ओके, सो अभी देखो उसको मुझे डिफाइन करना है, तो फिर से फॉर लूप में जाना कर पड़ेगा, एंड वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स ना। सो फॉर लूप में मुझे दो वेरिएबल्स प्रोवाइड करने हैं, आई एंड जी। ओके, सो इनसाइड फॉर लूप वी आर प्रोवाइडिंग टू आई एंड जी। आई मीन्स माई की एंड जी मीन्स माई वैल्यू। ओके, एंड अभी मुझे ये आई एंड जे निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी इन, डिक्शनरी का नाम क्या था, D1 डॉट इट्स आइटम्स, आई एम जस्ट यूजिंग आइटम फंक्शन एंड रन इट। सो सी अभी इसने क्या किया, पुणे के अंदर कितना था 1000, सो 1000 इंटू 0.62 किया, वो जे को असाइन किया। सेम मुंबई के साथ भी वही किया, सेम दिल्ली के साथ भी ऐसे किया। सो ऐसे तुम लोग एग्जिस्टिंग डिक्शनरी को क्रिएट करके उसके थ्रू भी एक नया वाला डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने जिप फंक्शन भी पढ़ा था। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेम्स इक्वल टू, एंड नेम्स के अंदर है ना, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड किया, फर्स्ट लिस्ट प्रोवाइड किया जय, सेकेंड लिस्ट मैंने इसके अंदर नाम प्रोवाइड किया सपोज राज, एंड 3 4 लोगों के नाम प्रोवाइड करूँ, यहाँ पे दिया मैंने नमन। एंड नेक्स्ट एक लिस्ट क्रिएट किया मार्क्स का, जिसके अंदर मैंने तीनों के मार्क्स दिए 33 44 एंड 55। एंड नाउ मुझे एक डिक्शनरी क्रिएट करना है, बट डिक्शनरी के लिए रिक्वायरमेंट है देयर इज ए की एंड वैल्यू फेयर। सो हम लोग यहाँ पे जिप फंक्शन यूज करेंगे, एंड जिप में भी बोलूंगी नेम्स को ले एज अ कीज, एंड जो भी मार्क्स मैंने दिया है उसको ले एज अ वैल्यूज। सो सी ऐसे जिप फंक्शन थ्रू भी तुम लोग डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, क्लियर है यहाँ तक, डन।
नेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक नया तरीका लेती हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डेज का एक लिस्ट प्रोवाइड किया, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ संडे. ओके, यहाँ पे दिया मैंने इट्स अ मंडे, ट्यूसडे, इट्स अ ट्यूसडे, एंड मैंने यहाँ पे दिया वेंसडे. दैट्स इट. 4 डे प्रोवाइड किए यहाँ पे. एंड मैं यहाँ पे ना उनका टेम्परेचर प्रोवाइड करूँ विच इज अगेन इन लिस्ट. सो फर्स्ट डे पे सपोज 23 था, उसके बाद 43 हो गया, समथिंग कुछ भी दे दो, 22 हो गया. एंड नाउ मुझे क्या करना है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थ्रू इसका नया लिस्ट क्रिएट करना है. सो मैं यहाँ पे दूंगी फर्स्ट वेरिएबल आएगा आई विच इज माई की, एंड सेकेंड आएगा जे विच इज माई वैल्यू. सो फॉर अगर आई एंड जे लिया है तो यहाँ पे तुम लोगों को 2 प्रोवाइड करने पड़ेंगे फॉर लूप के अंदर आई एंड जे. ओके, सो अभी यहाँ पे देखो, तुम लोग यहाँ पे बोलोगे इन दोनों कैसे मिलेंगे. सो जस्ट यूज ए zip फंक्शन. zip में फर्स्ट जाएगा डेज एंड सेकेंड में जाएगा जो तुम लोगों ने टेम्परेचर प्रोवाइड किया. नाउ रन इट. ओके, सो सेम कॉन्सेप्ट है, ऐसे तुम लोग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थ्रू भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल अभी मुझे सॉर्टेड करके करना है. तो देखो फॉर एग्जांपल मैं ना यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स पास कर रही हूँ. सो प्रोडक्ट्स इक्वल टू मैंने यहाँ पे दिया, सपोज मेरे पास फ़ोन है, एंड जो फ़ोन है उसका क्वांटिटी कितना है, तो मैंने यहाँ पे दिया है तो कुछ तो 20 क्वांटिटीज़ है. उसके बाद मैंने बोला मेरे पास लैपटॉप्स है. ओके, एंड लैपटॉप कितने मेरे पास, सपोज 4 है. उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला कि उस लैपटॉप की चार्जर्स है मेरे पास, चार्जर कितने हैं, सपोज मैंने यहाँ पे बोला 10 है. ओके, इतने लिखो. सपोज मैंने बोला माउस भी है मेरे पास, कितने माउस है, सपोज मैंने बोला 10 माउस है. ओके, अभी मुझे इसमें से ना सेलेक्टेड डेटा को लेना है. सो रिक्वायरमेंट इज व्हाट, जिसका भी स्टॉक अबाउ 5 है उसी को ही ले लो. 5 से बिले वो नहीं चाहिए मुझे, तो उसको कैसे करेंगे, सी आई यहाँ पे यूज करेंगे कोलन जी. सो फर्स्ट इज की एंड सेकेंड इज वैल्यू. सो फॉर लूप में जाएंगे, फॉर लूप में आई एंड जे को प्रोवाइड करूंगी. ओके, इन फिर इसको कैसे लगाएंगे. सो जो भी मैंने लिया है प्रोडक्ट्स, है ना, जो भी मैंने लिए हैं प्रोडक्ट्स. सो प्रोडक्ट्स में से मुझे क्या करना है, जो भी आइटम्स है ओके वो लिए मैंने. एंड यहाँ पे बोलूंगी इफ अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है 5 तभी बोलो. एंड जैसे मैं इसको रन करूँ सी 20 10 एंड 10 को लिया. सो ऐसे भी तुम लोग लिस्ट कॉम्परेशन थ्रू एक नया लिस्ट बना सकते हो यूजिंग एग्जिस्टिंग लिस्ट. ओके, डन. सपोज अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रिंट द टेबल ऑफ फ्रॉम 2 to 4. 2 to 4 के टेबल्स बनाने मुझे यूजिंग डिक्शनरी. तो उसको कैसे करेंगे, सी मैंने यहाँ पे लिया आई, एंड आई के अंदर है ना मैं फिर से एक डिक्शनरी क्रिएट करूंगी दैट इज जे. एंड जे कैसे क्रिएट होगा, दैट इज आई इंटू जे ओनली. ओके, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा ठीक से देखो समझ में आ जाएगा. एंड मैं यहाँ पे बोलूंगी फॉर जे इन रेंज. सो टेबल निकालना है तो ऑब्वियसली हम लोग को 1 to 10 चाहिए, तो मैं लूंगी 1 to 11. ओके, इससे बाहर आऊंगी. फॉर आई इन रेंज, फिर हम लोगों को क्या करना है 2 के 5. सो जिन लोगों का सी में हुआ है तो सी में देखो हम लोग क्या करते थे, वी आर यूजिंग नेस्टेड लूप, तो वही कॉन्सेप्ट है. एंड नाउ रन करो. सो सी ये तुम लोगों को 2 3 एंड 4 का टेबल डिजाइन करके देगा. 2 2 2 4 है ना. ओके, क्लियर यहाँ तक. सो ऐसे तुम लोग डिजाइन कर सकते हो. ओके, सो क्या किया, फर्स्ट आई यानी ये 2 3 4 को दिया उसने. ओके, 1 यानी 2 3 4, 4 6 8. ओके, इसके बाद 6 9 12, उसके बाद 8 12 16. सो उसने क्या किया, तुम लोगों को 2 3 एंड 4 का टेबल डिजाइन करके दिया. ओके, डन. नाउ इज व्हाट, कुछ बेसिक प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है वो बताती हूँ, तुम लोगों को बेनिफिशियल होंगे. सपोर्ट आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट वोवेल्स इन स्ट्रिंग. ओके, जस्ट फाइंड आउट वोवेल्स इन ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में से मुझे वॉवल्स निकालनी है. ओके, सो सी मैं एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करती हूँ यहाँ पे. सो स्ट्रिंग इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दिया सपोज सुरेखा नानेकर. ओके, एंड इसमें से मुझे वॉवल्स निकालने, तो उसके लिए ना मैं खाली एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करके रखूंगी. एंड फॉर सी एच इन, ये क्या करेगा, उस स्ट्रिंग में से 1 by 1 डेटा उठाएगा. बट तुम लोगों को चेक करना है इफ सी एच इन है ना, तो मैं क्या बोलूंगी AEIOU या AEIOU, कुछ भी आ सकता है. अगर इसमें से तुम लोगों का डेटा होगा देन काउंट जो भी सी एच है उसको मैं लिखूंगी काउंट डॉट गेट. आगे का भी डेटा लेना है. सो सी एच कॉमा 0 एंड इट्स अ +1. ओके, ये लॉजिक है, देखो अब ये वर्क कैसे करता है. ओके, एंड नाउ आई जस्ट वांट टू काउंट, प्रिंट दैट काउंट. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी जस्ट
आई थिंक इसको हाँ लूप से बाहर आके लिखो बिकॉज वी रिक्वायर्ड एंटायर वैल्यू ना। सो प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया मैंने काउंट। ओके सो सी ये क्या बोल रहा है, यू एक है, ई एक है, ए एक है ना। सो यू कितनी बार आया है, एक बार। ई कितनी बार आया है, दो बार। ए कितनी बार आया है, तीन बार। तो अभी ये वर्क कैसे करेगा देखो। काउंट एक एम्प्टी डिक्शनरी लिया है हम लोगों ने। ओके डिक्शनरी क्यों लिया है, बिकॉज मुझे हर एक वॉवेल्स कितनी बार आया है वो चाहिए। इट्स अ की वैल्यू पेयर, यानी जो भी वॉवेल है वो एज अ की आएगा एंड उसके अंदर जितना भी काउंटिंग आया है वो एज अ वॉवेल्स आएगा। ओके सो एक वेरिएबल लिया फॉर सी एच इन स्ट्रिंग, वो क्या करेगा, स्ट्रिंग में घुसेगा, उसमें से एक एक कैरेक्टर को बाहर लेके आएगा। एंड फिर हम लोगों को क्या चेक करना है, अगर वो जो सी एच कैरेक्टर बाहर आया है उसमें से कोई भी ए ई आई आइदर स्मॉल होगा या कैपिटल होगा, कुछ भी मिलता है तो यहाँ पे काउंट ऑफ जीरो, है ना, काउंट ऑफ जीरो इक्वल टू आएगा काउंट ऑफ गेट दैट सी एच। ओके सी एच जाएगा और सॉन इज जीरो पोजिशन प्लस किया मैंने यहाँ पे वन। ओके यानी क्या करना है तुम लोगों को, एक एक से बढ़ाना है उसको आगे। ओके यानी ये वन होगा तो ये सेकंड पोजीशन पे आएगा, ये थर्ड पोजीशन पे आएगा। अभी सपोज इसको मैंने यहाँ पे लिया काउंट ऑफ सी एच, तो सी एच यानी सपोज फर्स्ट एस के लिए तो नहीं है, यू के लिए आया, तो उसने क्या लिया काउंट ऑफ यू इक्वल कैसे लेगा, काउंट डॉट गेट, काउंट फंक्शन यूज करते हैं ना, काउंट डॉट गेट किसको, सी एच। सी एच मीन्स दैट यू, यू कॉमा जीरो प्लस वन। ओके सो यू यानी यहाँ पे ये आया। ओके एंड जब भी तुम लोग काउंट प्रिंट कर रहे हो ना, सो काउंट क्या करेगा, इसके अंदर जितना भी है, फॉर एग्जाम्पल यू ए प्लस वन मीन्स आगे जाने के लिए लिया तुम लोगों ने। सपोज मैंने यहाँ पे लिया होता सपोज ई, तो ई की जगह पे काउंट करके देगा कितनी बार आया है। फिर यहाँ पे लगा देगा ए, ए कितनी बार काउंट होके आया है। ओके सो जैसे वो मिलेगा तो क्या करेगा, उसके अंदर एक एक से इंक्रीमेंट करेगा। फर्स्ट टाइम मिला इट्स ओके, सेकेंड टाइम मिला वन ऐड करेगा, है ना। बिकॉज हम लोगों ने पाइथन में पढ़ा है देयर इज नो काउंट प्लस प्लस, देयर इज नो ए प्लस प्लस, तो तुम लोग को प्लस वन ऐड करना पड़ेगा। यानी अगर फर्स्ट टाइम मिला देन इट्स ओके, सेकंड टाइम मिला है तो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू बढ़ाएगा एंड एट द एंड तुम लोगों को एक डिक्शनरी फॉर्मेट में ऐसे आउटपुट निकाल के देगा। ओके क्लियर है यहाँ तक, डन। एंड नाउ second thing is what, suppose I just want to store 5 स्टूडेंट के जो भी नाम नाम मार्क्स है, नाम है वो यूजर से लेना है, स्टोर करना है। ओके सो देखो यहाँ पे मैं एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करती हूँ। सो एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए ऐसे लिखेंगे एंड मुझे क्या करना है, 5 लोगों को लेना है, तो ऑब्वियसली हम लोग यूज करेंगे फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज एंड मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी 5 है तो 0 1 2 3 4 तक चला जाएगा। नेम यूजर से लेना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी इनपुट एंटर, कोई भी एक नाम लो, सो मैंने यहाँ पे बोला एंटर नेम एंड आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट मार्क्स आल्सो। ओके सो मैं मार्क्स इंटीजर में लेंगे हम लोग, टाइप कास्ट करेंगे उसको इनपुट एंड यहाँ पे लिख दूंगी मैं एंटर मार्क्स, डन। सो दिस इज अबाउट द नेम एंड दिस इज अबाउट द मार्क्स। ओके एंड नाउ हम लोगों को क्या करना है, उसको डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है। तो डिक्शनरी का नाम लिया है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट के अंदर मैं डालूंगी की, दैट इज योर नेम एंड वैल्यू करके जाएगा एज अ मार्क्स, डन। एंड नाउ आई जस्ट वांट टू प्रिंट दैट स्टूडेंट के मार्क्स। ओके सो मैं यहाँ पे जाऊंगी, जस्ट राइट डाउन प्रिंट, प्रिंट के अंदर एक मैं मैसेज देती हूँ स्टूडेंट इन्फो, जस्ट राइट डाउन स्टूडेंट इन्फो। ओके एंड मैं यहाँ पे आऊंगी फॉर नेम एंड मार्क्स, दोनों को सेपरेट आउट करना है बिकॉज दिस इज द की एंड वैल्यू पेयर। एंड यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट डॉट इट्स आइटम्स, है ना, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जो डेटा टपल के फॉर्मेट में लेके आता है। एंड प्रिंट यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम कॉमा, मैं बोलूंगी बीच में कोलन दे एंड देन आई रिक्वायर्ड ए मार्क्स। एंड जैसे मैं इसको रन करूंगी तो सी मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सुरेखा, मार्क्स लिए 22, नाम लिखा नमन, मार्क्स लिए 23, यहाँ पे लिख दिया जतीन, मार्क्स लिए 9, जतीन मार्क्स लिए 90, उसके बाद लिख दिया साया, मार्क्स लिए कुछ तो 89, है ना, फिर से लिख दिया सनाया, मार्क्स लिखे कुछ तो 89, हिट एंटर, आ गया ना की वैल्यू फॉर्मेट में। सो ऐसे तुम लोग यूजर से डेटा लेके डिक्शनरी के अंदर स्टोर भी कर सकते हो। ओके क्लियर है यहाँ तक। ओके सो कुछ एक्स्ट्रा के असाइनमेंट्स वगैरह है तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर्स अपलोड करूंगी। ओके अगर तुम लोग को मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक फैलाओ जिसके कारण उसको इसका यूज हो सकता है उनके फ्यूचर के लिए। ओके सो थैंक यू। Okay so this is about today's session, thank you for watching my videos, bye bye।